السلام علیکم عزیز طلبہ طالبات، کل ہم نے گزشتہ لیکچر میں سبق کھیل پڑھا تھا۔ سبق کھیل میں آپ کو مصنف نے 3 چیزیں بتائی تھیں۔ سب سے پہلے کھیلوں کی اہمیت، اس کے بعد پاکستان کا قومی کھیل، اس کے بعد پاکستان کے علاقائی کھیلوں کے متعلق ہم نے پڑھا تھا۔ پاکستان کے علاقائی کھیلوں میں بیٹا ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا آنکھ مچولی۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آنکھ مچولی جو کھیل ہے یہ کہاں اور کس طرح سے کھیلا جاتا ہے۔ آنکھ مچولی ہمیشہ سے دیہاتی بچوں کا پسندیدہ کھیل رہا ہے۔ دیہاتی بچوں کا یہ پسندیدہ کھیل ہے آنکھ مچولی۔ اس کھیل کے اور بھی نام ہیں جس میں لکن میٹی اور چھپن چھپائی ہے۔ آنکھ مچولی اور چھپن چھپائی دونوں ایک ہی کھیل ہیں۔ اس کھیل کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، بچے رات اور دن کسی بھی وقت یہ کھیل کھیل سکتے ہیں۔ کھیل کا آغاز ٹاس سے ہوتا ہے۔ ٹاس ہارنے والا بچہ، جو بچہ ٹاس ہار جاتا ہے، اپنی آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور باقی بچے ادھر ادھر چھپ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب چھپنے والے بچے دور جا کر اس کو آواز دیتے ہیں جو بچہ ٹاس ہار گیا تھا، تو اس کے بعد وہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور آنکھیں کھول کر چھپنے والے ساتھی بچوں کو تلاش کرتا ہے۔ وہ بچہ سب سے پہلے جس ساتھی کو تلاش کر کے چھو لیتا ہے وہ ہار جاتا ہے اور اسے پھر باری دینی پڑتی ہے، یعنی دوسری طرف رخ کر کے ٹھہرنا ہوتا ہے۔ یوں یہ کھیل جاری رہتا ہے۔ تمام بچے کسی نہ کسی طرح اس کھیل میں شامل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ کھیل دیہاتی لڑکوں اور لڑکیوں دونوں میں یکساں طور پر مقبول ہے، یعنی اس کھیل کو لڑکے بھی کھیلتے ہیں اور لڑکیاں بھی کھیلتی ہیں۔ دوسرا کھیل ہے بیٹا گلی ڈنڈا۔ گلی ڈنڈا دیہاتی لڑکوں کا مرغوب کھیل ہے، پسندیدہ کھیل ہے۔ اسے کم سے کم 2 لڑکے کھیل سکتے ہیں۔ اصولی طور پر یہ کھیل 2 ٹیموں کے مابین کھیلا جاتا ہے، لیکن اگر 2 ٹیمیں نہیں بن رہی تو اسے آسانی سے 2 لڑکے بھی کھیل سکتے ہیں۔ اگر ٹیم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کو 14 کھلاڑی کھیلتے ہیں، یعنی ایک ٹیم 7 کھلاڑیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ زمین پر ایک چھوٹی سی نالی بنائی جاتی ہے جس پر گلی کو رکھ کر ڈنڈے کی مدد سے اچھالا جاتا ہے۔ نالی کو پنجابی میں کھتی کہتے ہیں۔ کھتی کے سامنے مخالف ٹیم کے کھلاڑی کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ کھلاڑی اگر کھلاڑی نے ڈنڈے سے اس گلی کو اوپر پھینکا ہے، اگر سامنے ٹیم والے مخالف ٹیم کے کھلاڑی اس گلی کو زمین پر گرنے سے پہلے پکڑ لیتے ہیں، کیچ کر لیتے ہیں، تو جس کھلاڑی نے اس گلی کو اچھالا تھا اس کی باری ختم ہو جاتی ہے، اس کی جگہ دوسرا کھلاڑی آ جاتا ہے۔ لیکن اگر گلی زمین پر گر جاتی ہے تو گلی کو پھر ڈنڈے کی طرف پھینکا جاتا ہے۔ اگر گلی کو جب پھینکا جاتا ہے وہ ڈنڈے پہ جا کے لگتی ہے تو تب بھی اس کھلاڑی کی باری ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر گلی ڈنڈے کے اوپر جا کر نہیں لگتی تو اس کھلاڑی کی باری بھی ختم نہیں ہوتی اور اسے کھیلنے کے اور مواقع ملتے رہتے ہیں۔ اگر گلی ڈنڈے سے ٹکرا جائے تو کھیلنے والا کھلاڑی آؤٹ ہو جاتا ہے۔ گلی اگر ڈنڈے سے نہ ٹکرائے تو ٹیم کا کوئی کھلاڑی گلی کی نوک پر ڈنڈا مار کر اسے ہوا میں اچھالتا ہے اور پھر اسے ہوا میں ڈنڈے کی تیز ضرب سے دور پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد گلی کو کھتی سے جہاں سے اس نے گلی کو پھینکا تھا زیادہ سے زیادہ دور پھینکنا ہوتا ہے۔ ہوا میں اچھال کر
गिल्ली को ज़रब लगाने के 3 मौके दिए जाते हैं। अगर तीनों मौके ज़ाय हो जाते हैं तब भी वो खिलाड़ी आउट हो जाता है। वगरना हस्ब मामूल डंडा गिल्ली पर डंडा खुदी पे रख के वो मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों को इधर उधर भगाता रहता है। अगर गिल्ली डंडे से टकरा जाती है तो फिर खिलाड़ी की बारी भी ख़त्म हो जाती है, और जब 7 दफ़ा टकराती है, हर खिलाड़ी के डंडे के साथ टकराती है, तो उस टीम की बारी ख़त्म हो जाती है और उसकी जगह पर दूसरी टीम आ जाती है जो उस खेल को जारी रखते हैं। तीसरा खेल है बेटा किकली। जिस तरह गिल्ली डंडा सिर्फ लड़कों का खेल है, इसी तरह किकली सिर्फ बच्चियां खेलती हैं। ये खेल पंजाब के देहातों में बेहद मकबूल है। छोटी छोटी बच्चियां एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर और पाँव से पाँव मिलाकर एक दायरे में घूमती हैं। साथ ही साथ वो ये बोल भी अलापती जाती हैं, किकली कलीदी पग मेरे वीर दी। इसमें एक लिहाज से पंजाब की उस सकाफ़त की भी निशानदेही की गई है जिसमें एक बहन अपने भाई की पगड़ी का इज़्ज़त और एहतराम करती है, अपने भाई की बात मानती है, उससे प्यार और मोहब्बत करती है, जिसके बदले में भाई भी उससे प्यार और मोहब्बत का इजहार करता है और उसकी हमेशा हमेशा हिफाजत करने की कसम उठाता है। इन रसीले और शीरीं बोलों से बहन भाई की लाजवाल मोहब्बत और मुक़द्दस रिश्ते की अक्कासी होती है। मुक़द्दस रिश्ता छलकता है, ज़हर होता है कि ये बहनें अपने भाइयों से कितना ज़्यादा प्यार करती हैं, ये बहनें अपने भाइयों से किस तरह से मोहब्बत का इजहार कर रही हैं। ये बोल इस बात का सबूत है कि बहनों को अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और लगाव रहता है। ये खेल जहाँ एक तरफ बच्चों और बच्चियों की जिस्मानी सेहत और तंदुरुस्ती के ज़ामिन हैं, वहीं पंजाब की सकाफ़ती ज़िंदगी की तर्जमानी भी करते हैं। सदियों से खेले जाने वाले ये मकबूल और दिलचस्प खेल आज भी हमारी देहाती ज़िंदगी में अपना मकाम रखते हैं। ये और इन जैसे दूसरे कई खेल हमारी तहज़ीबी और सकाफ़ती ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ रंगों से मुज़य्यन हैं, सजे हुए हैं। इन खेलों के साथ जहां हमारे बच्चों की मासूमियत छलकती है, मासूमियत नज़र आती है, हमारे बच्चों और बच्चियों की मासूमियत दिखलाई देती है, वहीं हमारे इलाके की सकाफ़त का इजहार भी इन्हीं खेलों से होता है। इस तरह से बेटा आपके लेसन हो गया है। इस लेसन की रीडिंग के दौरान में जो मुश्किल अल्फाज आए हैं मैं आपको उनके मैनी पढ़ा देता हूँ। यकसा इसके मैनी होते हैं बेटा बराबर, मामूल इसके मैनी होते हैं दस्तूर, मकबूल इसके मैनी होते हैं मशहूर, बाइस इसके मैनी होते हैं सबब, मरगूब इसके मैनी होते हैं पसंदीदा, वसीला इसके मैनी होते हैं ज़रिया, हस्बे मामूल मामूल के मुताबिक, लाजवाल, लाफानी, मुक़द्दस, पकीज़ा, लगाओ, प्यार और उन्स। ये बेटा आपका लेसन नंबर जो 18 था जिसका नाम था खेल, आज उसकी अल्हम्दुलिल्लाह रीडिंग और तशरीह ख़त्म हो गई है। एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज का सवालात का बेटा वो है मुख्तसर जवाबात दें। पहला सवाल है कि खेल के ज़रिए इंसान में कौन सी खूबियाँ पैदा होती हैं। इस सवाल का जवाब है कि खेल से इंसान में सब्र व तहम्मुल की खूबी पैदा होती है, खेल से इंसान में हौसला मंदी की खूबी पैदा होती है, खेल ही से इंसान में बर्दाश्त का जज्बा भी पूरा होता है, पैदा होता है। कोई से 5 देहाती खेलों के नाम लिखने हैं बेटा। 5 देहाती खेलों में सबसे पहले नाम है आँख मचोली का।
दूसरा नाम है बेटा गिल्ली डंडे का, तीसरा नाम है कोकला छपाकी का, चौथा नाम है कबड्डी का और पांचवा नाम है किकली का बेटा। उसके बाद अगला सवाल है कि बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल सतह पर खेले जाने वाले कोई से 5 खेलों के नाम लिखें। उनमें सबसे पहला बेटा फुटबॉल का खेल है। उसके बाद हॉकी है, हॉकी एक इंटरनेशनल खेल भी है और हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल भी है। उसके बाद क्रिकेट है, टेनिस है और बेटा बैडमिंटन है। उसके बाद इंसानी जिस्म के लिए खेल क्यों ज़रूरी है? जिस्मानी सेहत का दारोमदार खेल कूद पर है। इंसानी जिस्म में खेल की अहमियत से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि एक सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है और इंसान का जिस्म सेहतमंद उस वक्त होता है जब वो जिस्म खेल खेलता है, बाकायदा वर्जिश करता है। आखिरी सवाल है बेटा, किकली खेलते वक्त बच्चियाँ क्या बोल अलापती हैं? किकली खेलते वक्त बच्चियाँ कहती हैं किकली कलीर दी पग मेरे वीर दी। उसके बाद सवाल है बेटा, अल्फाज के मैनी लिखें और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज मैनी बेटा आपको पहले पढ़ा दिए गए हैं, अब इनके जुमले बनाने हैं। पहला लफ्ज़ है बेटा रसीले, पहला लफ्ज़ है रसीले। इसके जुमले आप बेटा ख़ुद बनाएंगे। जैसे रसीले बोल बोलने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है। आप इसका कोई और जुमला भी बना सकते हैं मैनी के लिहाज से। रसीले के मैनी होते हैं रस भरे, यानी रसीले बोल बोलने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है। दूसरा लफ्ज़ है बेटा लाजवाल। लाजवाल के मैनी होते हैं गैर फ़ानी, वो चीज़ जिसने ख़त्म ना होना हो। जैसे अल्लाह ताला की ज़ात एक लाजवाल ज़ात है, अल्लाह ताला की हस्ती लाजवाल है। मुकम्मल दुनिया ख़त्म हो जाएगी लेकिन अल्लाह ताला की हस्ती हमेशा बाकी रहेगी। तीसरा लफ्ज़ है बेटा मुक़द्दस। मुक़द्दस के माने होते हैं पाक। मस्जिद एक मुक़द्दस जगह है, कुरान एक मुक़द्दस किताब है। उसके बाद बेटा मकबूल। मकबूल के माने होते हैं पसंदीदा, मशहूर। हर खेल अपने इलाके में मकबूल होता है। अगर शहर में क्रिकेट मकबूल है तो देहात में गिल्ली डंडा मशहूर है, कोकला छपाकी मशहूर है। इसी तरह मुज़य्यन सजा हुआ होना। 14 अगस्त के दिन पूरा पाकिस्तान सब्ज़ झंडियों से मुज़य्यन होता है। ये बेटा आपके थे अल्फाज मैनी और जुमले। उसके बाद है बेटा वहद जमा। वहद जमा में सबसे पहला लफ्ज़ है बेटा जज्बा। इसके जमा बनेगी जज्बे। खित्ते ये जमा का लफ्ज़ है, खित्ते। इसके अब बेटा ये जमा का लफ्ज़ है, इसका वहद बनेगा खित्ता। उसके बाद एक वहद जमा का सलाहियत, सलाहियतूं। अमल, अमाल, अमल इसकी जमा बनेगी बेटा अमाल। उसके बाद है मामूल, मामूल की जमा बनेगी मामूलात। उसके बाद है बच्चे। अब बच्चे खुद एक जमा का लफ्ज़ है, इसकी वहद बनानी है और इसकी वहद बनेगी बेटा बच्चा। उसके बाद बेटा सवाल है कि कालम अलफ में दिए गए अल्फाज को कालम बे के मुतलका अल्फाज से मिलाएं। चाको चौबंद, इसका बेटा जब कालम के साथ मिलाएंगे तो इसका जवाब आएगा चुस्त। उस कौमी खेल हॉकी, पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। शहरी खेल, शहरी खेल टेनिस। बच्चों का खेल गिल्ली डंडा। बच्चियों का खेल किकली। सब्र तहम्मुल
برداشت کرنا۔ صبر و تحمل اور برداشت دونوں ایک ہی لفظ ہیں۔ صبر و تحمل کو ہم برداشت کے کالم سے ملائیں گے۔ یہ بیٹا آپ کے سبق نمبر 18 کی ریڈنگ کے ساتھ ساتھ آج ایکسرسائز بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اس ایکسرسائز کا آپ نے ہوم ورک بھی کرنا ہے اور اس ایکسرسائز کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ آپ روزانہ کا کام روزانہ کرتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ حافظ۔